Now I am starting question number 4. Question number 4 is 5 square root of 2.709 times 7th root of 1.239. So first of all you have to write it with x. Now I am converting into exponential form and change its sign. So this is equal to log of 2.709 whole power is 1 over 5 plus log of 1.239 whole power is 1 over 7. You also know that exponents will be written before the log. So 1 over 5 log of 2.709 plus 1 over 7 log of 1.239. Now I am going to find its characteristic and multisa. So for characteristic, draw the reference point. This is the reference point and this is the reference point. Characteristic is equal to 0 because there is no digit in between reference point and the decimal point. Similarly, the characteristic of this value is 0 because there is no value in between reference point and the decimal point. Now we have to find multisa, and its multisa. So this is equal to write log 2709. 2709 is equal to this. The value is 4328. 4328. And now the characteristic is 0. Multisa is equal to log of 1239. 1239 pressed, the value is 0930. 0930. Now you have to write the values, but you also know that before this logarithm log of 2.709 there is a value 1 over 5. तो हम तब तक कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा को सेपरेट नहीं करेंगे जब तक हम उसको 5 से डिवाइड नहीं कर लेंगे. सिमिलरली यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा. कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा को इकट्ठा लिखेंगे और लिखने के बाद हम उसको 7 पे डिवाइड कर लेंगे. सो this is equal to characteristic 1 over 5 and 0.4328, then plus 1 over 7 0.0930. अब पहले इन वैल्यूज़ को आपने रेलिवेंट वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करना है. उसके बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक और मल्टीसा की सेपरेट वैल्यू आएंगी. फर्स्ट वैल्यू इज 0.4328 डिवाइडेड ऑन 5. सो इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.0865. log of x 0.0865. now plus divide this value 0.0930 on 7. 0.0930 divided on 7. This value is equal to 0132. So I have to write 0.0132. Now I am going to add the values. Both values are with plus sign, so this is 0.0865 plus 0.0132. So my answer is 0.0997. 0.0997. So this is equal to log of x. X is equal to anti-log of 0.0997. So when I have to find its anti-log,
0.0997. My answer is 1.258. 1.258. जी, my answer is clear. I have to check it. 1.258. This is our answer. I hope you will understand, and I am going to start to solve question number 5. So I am going to start question number 5. सबसे पहले हम इसको लिखेंगे as x is equal to log and the next procedure. जी, नाउ दिस क्वेश्चन इज़ लिटिल बिट ट्रिकी. इस क्वेश्चन में आप लोग नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आप लोगों का रॉन्ग हो जाता है. हमें ये तो मालूम है कि जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होती है वहाँ पर प्लस का साइन यूज़ होता है. तो आप जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन लिखते हैं, यहाँ पर भी प्लस का साइन लिखते हैं. लेकिन आप ये टोटली भूल जाते हैं कि दिस होल वैल्यू इज़ डिवाइडेड. दिस होल वैल्यू इज़ डिवाइडेड. डिवीजन के साइन को हम हमेशा नेगेटिव साइन के साथ चेंज करते हैं. डिवीजन नेगेटिव में चेंज होती है, लेकिन ये होल वैल्यू नेगेटिव है. अगर इस होल वैल्यू के बाहर नेगेटिव साइन आएगा तो वो माइनस का साइन इस अंदर वाले प्लस के साइन को नेगेटिव में चेंज कर देगा. तो ये मेन प्रॉब्लम होता है इस क्वेश्चन के रॉन्ग होने का. इस चीज़ पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा. दिस इज़ इक्वल टू log of 1.23 multiplication converted into plus log of 0.6975. Now I am going to change this value. Whole value is divided but there is a positive sign. तो होल वैल्यू जब डिवाइड होगी तो माइनस में कन्वर्ट होगी, तो होल वैल्यू के बाहर नेगेटिव साइन आएगा. ये वाला नेगेटिव साइन इस पॉजिटिव साइन को चेंज कर देगा. मैं इस होल वैल्यू को लिख रही हूँ माइनस with bracket log of 0.0075. now plus log of 1278. अब देखिए ये बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले इस साइन को वो चेंज कर देगा. तो आपकी वैल्यू आएगी log of 1.23 प्लस log of 0.6975 माइनस log of 0.0075 माइनस log of 1278. अब हम करेक्टरिस्टिक और मल्टीसा फाइंड आउट करते हैं. इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक होगा मेरे पास, दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट, सो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0. दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट, सो करेक्टरिस्टिक विल बी -1, क्योंकि डेसिमल पहले है, रेफरेंस पॉइंट बाद में है. नाउ करेक्टरिस्टिक ऑफ this is the reference point. after first non-zero digit you will write the reference point. तो ये मेरा फर्स्ट 7 जो था वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट था. अब डेसिमल और नॉन ज़ीरो डिजिट के इन बिटवीन देर आर 3 नंबर्स 1 2 3. सो दिस इज़ -3. यहाँ पर आ जाएगा आपके पास करेक्टरिस्टिक. अब देखिए जहाँ पर कोई डेसिमल नहीं होता, जहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा उस वैल्यू के बिल्कुल एंड पे डेसिमल पॉइंट होगा. मींस कि इस वैल्यू का डेसिमल यहाँ पर लास्ट वैल्यू में लिखा गया है, तो ये मेरा डेसिमल पॉइंट होगा. अब ये डेसिमल पॉइंट है और ये रेफरेंस पॉइंट है. रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के इन बिटवीन दीज आर 3 नंबर्स, सो आई विल राइट 3. 3 पॉजिटिव आएगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पहले है, डेसिमल नंबर बाद में. ऑल दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स. अब मैं मल्टीसा के लिए वैल्यू लिख लेती हूँ. मल्टीसा आपके पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का log of 123. log of 123 इज इक्वल टू 0.0899. नाउ मल्टीसा दिस इज इक्वल टू log of 6975. तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 8435. यहाँ पर आ जाएगा 75 log of 75. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8750. यू ऑल्सो नो दैट, रिमेंबर दैट, पॉइंट से पहले की वैल्यू आप नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर में पॉइंट से पहले वो करेक्टरिस्टिक दे रहा होता है. तो करेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी बाय हैंड फाइंड आउट
कर चुके हैं। डोंट फॉरगेट दैट कि कैरेक्टरिस्टिक हमने बाय हैंड फ्री हैंड फाइंड आउट करना है और मल्टीसा के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू है मेरी log ऑफ 75, इसका log आया है 1.8750। 1 पॉइंट मैं इग्नोर करूँगी, पॉइंट के बाद की वैल्यू लिखेंगे 8750। अब मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई 1278। सो दिस इज 1278। सो वैल्यू इज 1065। मल्टीसा इज इक्वल टू 1065। अब हम इन वैल्यूज़ को अरेंजिंग फॉर्म में लिखेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक 0, राइट मल्टीसा 0.0899। यहाँ पर प्लस की वैल्यू है तो प्लस करेक्टरिस्टिक लिखेंगे प्लस, और ये इस करेक्टरिस्टिक का माइनस प्लस माइनस -1 प्लस 0.8435। यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन है, बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे। बाहर माइनस साइन लिखा, वैल्यूज़ को विद इन ब्रैकेट 3 माइनस प्लस 0.8750। यहाँ पर भी -3 फिर प्लस 0.1065। अब इस नेगेटिव साइन, इन दो नेगेटिव साइंस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा 0.0899 -1 प्लस 0.8435 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 0.8750 -3 माइनस 0.1065। अब मैंने आपको बताया था करेक्टरिस्टिक और मल्टीसा आपने सेपरेटली डील करना है। यहाँ पर आपको विजिबल नज़र आ रहा होगा कि ये +3 की वैल्यू है और ये -3 की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसल आउट हो सकती हैं, रिमेनिंग -1। सो दिस इज़ log ऑफ x इज़ इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ मेरे पास प्लस साइन के साथ हैं, ये दो वैल्यूज़ माइनस साइन के साथ हैं। तो मैं पहले इन दो को प्लस करूँगी, फिर इन दो को माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ज़्यादा बेहतर है कि स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करें, इससे मिस्टेक का मार्जिन आपका कम रहता है। अगर आप ऑल वैल्यूज़ को एक ही टाइम में मैनेज करके लिख लेते हैं तो उसमें मिस्टेक का मार्जिन ज़्यादा होता है। तो प्लस 0.8435। माय आंसर इज़ 0.9334 प्लस 0.9334। यहाँ पर देखिए माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन ऑलरेडी लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस होंगी। तो ये आ जाएगा 0.8750 प्लस 0.1065। दिस इज़ द वैल्यू। यहाँ पर जब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास आया 0.9815। 0.9815। अब देखिए करेक्टरिस्टिक की वैल्यू -1 थी, इसके साथ और कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं भी इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख रही हूँ। साइड पे वैल्यू आ जाती है आपके पास प्लस माइनस माइनस, तो वैल्यूज़ को लिख के हम इसको माइनस कर लेते हैं। दिस इज़ 0.9334 माइनस 0.9815। ये मैंने वैल्यू लिख ली। वैल्यू लिखने के बाद इसको ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया -0.0481 माइनस 0.0481। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस 0.0481। दिस इज इक्वल टू एज लाइक दिस -1.0481 माइनस 1.0481। दिस इज इक्वल टू log ऑफ x। सो एंटी लॉग
-1.0481। एंटी लॉग इसका लेंगे, वैल्यू को एज इट इज़ कैलकुलेटर में मेंशन करें। एंटी लॉग इज इक्वल टू -1.0481। प्रेस, योर आंसर इज 0.089, 0.089। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6।